Hello, students. How are you all? A very good morning to all of you. I am Fatima Kulsala from Atmiya Green School, Jadeshwar, and welcome back to English grammar class. So, students, we are completed with our chapter number 18 and 19. We completed in the previous video simple past tense, and today we would be starting our new chapter, that is chapter number 20, simple future tense. And this is the last chapter of your PT3 syllabus. So let's start this chapter. As we have already studied about simple present tense, simple past tense and present continuous tense. As I told you before, that in English we talk about the actions done three times, that is present, past and future. Present means the activity which is taking place now or which is done again and again on regular basis, right? In the past tense we learned that we are talking about the actions which are already completed. ठीक है, जो एक्शंस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फ्यूचर टेंस. फ्यूचर मीन्स जो अभी होना बाकी है, द थिंग्स विच आर स्टिल गोइंग टू हैपन एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग. ठीक है, so let's study the chapter. I request you all to open page number 75 in your grammar textbook, that is Adventures with Grammar and Composition. Okay, so let's see the conversation between Post and Grammar. I will wake up at 6 a.m. tomorrow. I will go for a jog. Then I will eat a healthy breakfast. Now what is Post thinking? What is he going to do tomorrow? Tomorrow मतलब अभी वो दिन आया ही नहीं है, right? He is thinking about it right now that he will wake up at 6 a.m. मतलब सुबह जल्दी उठेगा 6 o'clock को. Then he will go for a jog. Then I will eat a healthy breakfast. So जब सुबह दूसरे दिन ग्रामा उठाने आता है उसको, ठीक है, सो व्हाट डज ही से द नेक्स्ट डे? ग्रामा सेज wake up Post, it's time for your jog. I am sleepy Grandma. I will start from tomorrow. Now if you notice the words over here which are along with will, ठीक है, will start, will wake up, will go, will eat, right? यहाँ पर आप जो देख सकते हो will का यूज हुआ है, right? What does will represent? Will represents future टेंस. ठीक है, हम उसके साथ यूज़ करते हैं जो एक्शंस अभी होनी बाकी है. इट हैज़ नॉट हैपन इन प्रेजेंट एंड इट डिडंट हैपन इन पास्ट, बट इट इज़ गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर. ठीक है, तो उसके लिए हम विल यूज़ करते हैं. ठीक है, वी यूज सिंपल फ्यूचर टेंस टू टॉक अबाउट द थिंग्स दैट विल हैपन in the future, that is after present tense. As you can see over here, हम लोग अभी इधर है, ठीक है, अभी पढ़ रहे हैं. ठीक है, ये पास्ट आप कह सकते हो, हमने सिंपल पास्ट टेंस पढ़ लिया, राइट? और फ्यूचर मतलब हम लोग अभी एग्ज़ाम देंगे PT3 की, राइट? तो वो हो गया आपका फ्यूचर टेंस. हम अभी क्या कर रहे हैं? हम लोग अभी फ्यूचर टेंस पढ़ रहे हैं, राइट? राइट नाउ वी आर स्टार्टिंग सिंपल फ्यूचर टेंस, बट after some days we will write the exams. ठीक है, so that would be the future. So when do we use future tense? To talk about the things that will happen in future. मतलब जो चीज़ अभी हुई नहीं है उसके लिए हम future tense यूज़ करते हैं. ठीक है, future tense का फॉर्मेशन बहुत ही सिंपल है. It is will plus verb, और आपका जो ये वर्ब होगा वो होगा बेस फॉर्म, दैट इज़ V1. मैंने आपको पढ़ाया है बेस फॉर्म, आप सबको क्लियरली समझ में आ गया है कि बेस फॉर्म मतलब क्या होता है. वो वाला वर्ब जिसमें हम चेंजेस नहीं करते हैं. ठीक है, सो वी विल यूज़ वी विल यूज़ विल प्लस वर्ब टू टॉक अबाउट द एक्शंस that is going to take place in future. Now when are we going to use future tense? You need to understand that also कि हम लोग future tense कब use करने वाले हैं. First thing is for the actions we have decided to do in the future.
वही एक्शंस जो हमने फ्यूचर में करने का डिसाइड किया हुआ है। जैसे कि अभी आप पढ़ रहे हो, उसके बाद आप खेलने जाने वाले हो, राइट। तो अभी मान लो आपने ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है कि आई विल बी प्लेइंग आउटसाइड इन द इवनिंग, राइट। तो वैसी चीज़ों के लिए आप फ्यूचर टेंस यूज़ करोगे। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, आई विल प्ले फुटबॉल आफ्टर लंच। नाउ इफ यू नोटिस ओवर हियर दे हैव यूज्ड विल एंड प्ले, ठीक है। सो विल किसके लिए यूज़ हुआ है? फ्यूचर टेंस बताने के लिए। और उसके साथ जो वर्ब है वो है प्ले, विच इज़ द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। एंड वेन वी नो एग्जैक्टली वॉट विल हैपन नेक्स्ट। और हम फ्यूचर टेंस कब यूज़ करते हैं? जब हमें पता है कि इसके बाद क्या होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, जो यू आर स्विंगिंग ऑन अ वीक ब्रांच, इट विल ब्रेक। नाउ इफ यू सी द सेंटेंस ओवर हियर, द फर्स्ट वन, वो क्या बोल रहा है कि तुम जिस ब्रांच पे स्विंग कर रहे हो वो वीक है। वीक है मतलब टूट जाने जैसा है। सो क्या होने वाला है उसके बाद? इट विल ब्रेक, ठीक है। सो यहाँ पर भी क्या यूज़ किया है? विल, और उसके बाद ब्रेक। मतलब आपका फ्यूचर टेंस का फॉर्मेशन विल प्लस वर्ब, दैट इज इन द बेस फॉर्म, ठीक है। सो नाउ आई होप दैट यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक. So now let's start the exercises. Change the following to simple future tense. The first one has been done for you. The train leaves at 10 p.m. Now this sentence is present tense, ठीक है। इसमें जो verb है वो क्या है? leaves है। हमने जैसे पढ़ा था कि हमारा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता है तो उसके साथ का जो वर्ब होता है उसके अंदर हमें एस का साउंड ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ पे लीव का लिख दिया है लीव्स। लेकिन मैंने आपको जैसे बताया कि जब हम फ्यूचर टेंस बनाते हैं एट दैट टाइम अलोंग विथ विल हमारा जो वर्ब होगा वो कौन से फॉर्म में होगा? बेस फॉर्म में, राइट। जो बेस फॉर्म मतलब कौन सा वाला? जिसके अंदर हम कोई चेंज नहीं करते हैं। वी डोंट मेक एनी चेंजेस इन द स्पेलिंग, ठीक है। सो वेदर इट इज़ थर्ड पर्सन सिंगुलर और थर्ड पर्सन प्लूरल, ठीक है, हर एक के लिए हम लोग विल के साथ वर्ब का बेस फॉर्म ही यूज़ करेंगे, ठीक है। सो द आंसर इज द ट्रेन विल लीव एट 10 p.m. Now let's see the next one. So turn your page on 76. Okay, let's see the second one. The birds come back to their nest in the evening. So now the verb over here is come. और अगर हम फ्यूचर करेंगे तो क्या करेंगे? विल कम हो जाएगा, है ना। तो आपका आंसर क्या होगा? द बर्ड्स विल कम बैक to their nest in the evening. I won't be able to write the whole sentence, but you need to understand कि हमें come की जगह पर क्या लिखना है यहाँ पे? Will come, and rest of the sentence would be as it is. The birds will come back to their nest in the evening. Okay. Now let's see the third one. Post runs for 5 kilometer. Now again if you see यहाँ पे जो हमारा वर्ब है runs वो हमारा बेस फॉर्म नहीं है, ये एस साउंड वाला है, राइट। वाई? बिकॉज हमारा जो सब्जेक्ट है सेंटेंस का डैट इज़ थर्ड पर्सन सिंगुलर। लेकिन जब हम विल यूज़ करेंगे तो विल के साथ क्या हो जाएगा? हमारा वर्ब वापस बेस फॉर्म में आ जाएगा। विल रन, पोस्ट will run for 5 kilometers. Do you get it? Fourth one, we paint pots of clay for our class project. So here आपका verb है paint which is in a base form. So हमको सिर्फ will add करना है यहाँ पे। तो हम क्या लिखेंगे? We will paint we will paint pots of clay for our class project. Fifth one, Sheena learns how to play the drums.
नाउ स्टूडेंट्स टेल मी, इज दिस बेस वर्ब और उसमें एस का साउंड ऐड हुआ है? यस, इसके अंदर एस का साउंड एस हुआ है, ऐड हुआ है। क्यों? क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है शीना, दैट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, ठीक है। इसीलिए हमने लर्न की जगह पर लर्न्स लिखा है। बट व्हेन वी आर एडिंग विल अलॉन्ग विथ इट, हम लोग बेस फॉर्म यूज़ करेंगे, तो वो हो जाएगा लर्न। सो योर आंसर विल बी शीना विल लर्न हाउ टू प्ले द ड्रम्स। लेट्स सी द नेक्स्ट वन, sixth one. Jayant Jayant talks to Javed on the phone. Now again, your verb talks is नॉट द बेस फॉर्म, ठीक है, वो एस साउंड वाला है क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ठीक है ना। तो उसके साथ जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर होगा। और हमने पढ़ा है कि जिसके अंदर हम एस का साउंड ऐड करते हैं जिस वर्ब के साथ, वो हमारा सिंगुलर वर्ब होता है, राइट। तो अब जब हम विल ऐड करेंगे तो उसके साथ हमारा जो वर्ब है वो वापस बेस फॉर्म हो जाएगा। मतलब हम लिखेंगे जयंत विल टॉक टू जावेद ऑन द फोन। ओके, सो आई होप दिस एक्सरसाइज इज क्लियर। आई विल बी सेंडिंग यू द आंसर्स इन द PDF. ओके, नाउ लेट्स सी एक्सरसाइज B. Post has returned his schedule for the day here. Write what he will do today. Now he has already prepared a schedule, what he would be doing at what time, right? तो जैसे पहले वाला लिखा हुआ है he will eat breakfast at 8 AM. अभी वो क्या करने वाला है 9 AM को? Read the newspaper. तो आपका आंसर क्या होगा? He will read the newspaper at 9 AM. ओके, हेल्प ग्रामा रिपेयर द टेंट, कितने बजे? 10:30 AM. सो व्हाट विल यू राइट? ही विल हेल्प ग्रामा रिपेयर द टेंट. सो यहाँ पे हो जाएगा विल हेल्प. 11 AM, प्ले फैच विथ GT. सो व्हाट इज ही गोइंग टू डू एट 11 AM? ही विल प्ले fetch with GT. 5 PM, what is he going to do? Teach Mac how to dig a hole. So the answer would be he will teach Mac how to dig a hole. Let's see the last one. Watch the movie 101 Dalmatians. At what time? 6:30 PM. So what is he going to do? He will watch the movie 101 Dalmatians at 6:30 PM. So students, I hope this is also clear. Now the last exercise, you need to choose a verb from the box and use it in simple future tense form to complete each sentence. Now there are some words given over here, right, in the box. और वो आपको ये जो नीचे सेंटेंसेस है ब्लैंक्स वाली, उसके अंदर ऐड करना है और आपको सिंपल फ्यूचर टेंस ऐड यूज़ करना है, ठीक है। नाउ लेट्स सी द फर्स्ट वन, आई डैश अर्ली टुनाइट. सो व्हाट यू विल डू अर्ली टुनाइट? स्लीप. तो आपका पहला आंसर क्या होगा? आई विल स्लीप अर्ली टुनाइट, ठीक है। सेकेंड वन, द टेलर्स डैश अ स्पेशल ड्रेस फॉर प्रिंसेस. So what would a tailor do? Stitch. So you will write the tailors will stitch a special dress for the princess. Third one, our teacher dash a story to us today. Again क्या करेंगे? रीड करेंगे, तो हम ऐड करेंगे will उसके साथ to show the future tense. Our teachers will read a story to us today. The two teams dash the semi-final match tomorrow. What will they do? They will play. Okay, the two teams will play the semi-final match tomorrow. And last one, sorry, I can't talk now. I dash you later. So what it would be? It would be I will call you later. Okay,
So I hope that this exercise is clear and you are also clear with this chapter, that is simple future tense. It is quite easy and it was quite fast to understand it. As I told you, future tense मतलब हम उस एक्शन के बारे में बात करते हैं जो अभी तक हुई नहीं है, वो होने वाली है, ठीक है, वो अभी होना बाकी है. दैट इज़ कॉल्ड सिंपल फ्यूचर टेंस. और हमने पढ़ा कि सिंपल फ्यूचर टेंस का फॉर्मेशन क्या होता है, विल प्लस हमारा वर्ब जो हमेशा कोई भी पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, या सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हम हमेशा हमारा वर्ब विल के साथ बेस फॉर्म में ही रखेंगे. ठीक है, यू नीड टू रिमेंबर विल के साथ जो वर्ब होगा वो हमेशा बेस फॉर्म में होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट. आपका सब्जेक्ट जो भी हो, बट इफ़ यू आर मेकिंग अ फ्यूचर टेंस सेंटेंस, then you have to keep your verb in the base form. And when do we use future tense? We use for the actions we have decided to do in the future. वो actions जो हमने already decide की है कि हमको future में करनी है, ठीक है. और दूसरा, when we know exactly what will happen next. हमको जब मालूम है कि अभी ये जो हो रहा है उसके बाद क्या हो सकता है, ठीक है, तो उसके लिए हम will use कर सकते हैं, ठीक है. So I hope that you are clear with this chapter. If you have any doubt, you can let me know in the live class. Take care and see you soon.